اولمپئن میاں اعظم صاحب پاکستان ویٹ لفٹنگ کے وہ کھلاڑی جنہوں نے ماضی میں مسلسل 2 مرتبہ اولمپک گیمز میں پاکستان کی جانب سے شرکت کا اعزاز حاصل کیا، جو آج کل کے بنگلہ دیش میں 1792 کلومیٹر دور اس وقت پاکستان کی نیشنل چیمپئن شپ کھیلنے کیسے جایا کرتے تھے، اور جنہیں روس کے دارالخلافہ ماسکو کی جانب سے 1965 میں پاک بھارت جنگ سے چند دن قبل خصوصی دعوت کیوں دی گئی۔ میں ہوں ثاقب فیاض اور سپورٹس موٹیویشن چینل کی سپورٹس بایوگرافی سیریز میں ہم آپ کو پاکستان کے انہی لیونگ لیجنڈ میاں اعظم صاحب کی بایوگرافی دکھانے اور اس ویڈیو کے آخر میں ان سے ملوانے جا رہے ہیں۔ جناب اولمپئن میاں اعظم صاحب پاکستان بننے سے پہلے 5 اگست 1939 کو لاہور شہر کے لٹن روڈ کے علاقے سادی پارک میں پیدا ہوئے۔ بڑی جوانی کی عمر تک آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ تھا۔ آپ کا وزن 62 کلو گرام رہا۔ آپ ویٹ لفٹنگ کے اس وقت کے بینٹم اور فیدر ویٹ کیٹیگریز میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں ویٹ لفٹنگ کے 3 ایونٹ ہوا کرتے تھے، جس میں سنیچ، کلین اینڈ جرک اور پریس شامل تھے۔ آپ نے میٹرک 1955 میں گورنمنٹ ہائی سکول مزنگ سے پاس کیا اور ایف اے پرائیویٹ پاس کرنے کے فوراً بعد آپ نے باقاعدہ ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ کا آغاز 1958 میں کر دیا۔ 1 سال بعد 1959 میں آپ نے کراچی میں نیشنل چیمپئن شپ بینٹم ویٹ کیٹیگری میں لڑی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1960 میں آپ نے اٹلی کے شہر روم اولمپک گیمز میں شرکت کی۔ 1961 میں آپ دوبارہ نیشنل چیمپئن بنے۔ 1962 میں آپ نے آسٹریلیا کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کی۔ 1962 ہی میں آپ انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں ایشین گیمز کھیل کر آئے۔ 1963 میں آپ نے ایک مرتبہ پھر نیشنل چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 1964 میں آپ نے جاپان میں ٹوکیو اولمپک گیمز میں دوسری مرتبہ شرکت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1965 میں روس کے شہر ماسکو سے آپ کے نام خصوصی خط آیا، جس میں انہوں نے آپ کو 2 مرتبہ اولمپئن ہونے کے اعزاز میں ماسکو میں ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کھیلنے کی دعوت دی۔ آپ جب اس ٹور سے واپس آئے تو ساتھ ہی کچھ دنوں بعد پاک بھارت جنگ لگ گئی۔ 1966 میں آپ کو چین کی جانب سے دعوت نامہ موصول ہوا کہ آپ چائنا ویٹ لفٹنگ فیسٹیول میں کھلاڑی کے طور پر شرکت کریں۔ آپ نے اس مقابلے میں بھی حصہ لیا۔ 1967 میں آپ کو پاکستان کا بہترین کھلاڑی ڈکلیئر کیا گیا اور اس کی خبر پاکستان کے نامور میگزین میں آپ کی تصویر کے ساتھ شائع ہوئی۔ 1968 سے 1973 6 سال تک آپ مسلسل پاکستان کے نیشنل چیمپئن بنے۔ آپ کھلاڑی کے طور پر کچھ ایسی نیشنل چیمپئن شپس کھیلنے 1792 کلومیٹر دور آج کل کے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ گئے، جو اس وقت مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا۔ 1974 میں آپ نے کھلاڑی کے طور پر ویٹ لفٹنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1976 سے لے کر 1997 21 سال تک آپ پاکستان ویٹ لفٹنگ ٹیم کے نیشنل کوچ رہے۔ آپ کی کوچنگ میں نیشنل ٹیم نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ 1977 سے لے کر آج کی تاریخ تک آپ انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی جانب سے کلاس 2 کیٹیگری کے ریفری ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ہم ان اولمپئن کے گھر پہ موجود ہیں جن کا تعارف آپ کو ہم نے ابھی ویڈیو کے پہلے حصے میں کروایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جناب میاں اعظم صاحب۔ جی آپ اولمپئن رہ چکے ہیں اور مسلسل 2 مرتبہ اولمپئن رہنے والے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، آپ بتائیے گا کہ آپ ویٹ لفٹنگ میں کیسے انڈکٹ ہوئے؟ آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا کہ آپ ویٹ لفٹنگ کی طرف آئیں؟ آپ کے کون استاد تھے، وہ کون رہتے تھے؟ آپ کہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا واقعہ بتائیے گا۔ میرے استاد چودھری فضل تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ویٹ لفٹنگ شروع کرو، تو میں نے اس وقت بھی ویٹ لفٹنگ شروع کر۔ اس کے بعد میں پھر کافی ٹریننگ کی۔ پہلے سال تو میں
1952 में सेकंड आया पंजाब में। इसके बाद फिर मैंने इतनी मेहनत की तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। अभी हमें वो आपकी मेहनत की नजर भी आ रही है हमारे बैकग्राउंड में। आप देखें कि माशाल्लाह ट्रॉफीज हैं और काफी ऐसा souvenir जो सारा ये जमा पूंजी है जी एक खिलाड़ी की। आपकी सर एक तवील फहरिस्त है जिसमें आपने बहुत सारी जीत समेटी हुई है, तो हमें बताइएगा काइंडली कि काफी दफा नेशनल चैंपियनशिप खेलने आपको इतनी दूर जाना पड़ता था कि लाहौर से ढाका जो कि 1700 तकरीबन 94 किलोमीटर दूर है, तो तब आपको क्या महसूस होता था, क्या फील करते थे कि इतने दूर जाके? पहले तो आप काइंडली थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि सफर कैसा रहता होगा आपका, फिर वहां पे जाके जो आपकी कैंपेनिंग होती थी कैसे वहां पे रहते थे, ट्रेनिंग करते थे, फिर चैंपियनशिप खेल के 1-2 दिन की जो चैंपियनशिप होती थी फिर वापस जब आता है, तो ये थोड़ा सा हमें शॉर्टली बताइएगा काइंडली। 1960 में ढाका ओलंपिक गेम जिसमें हम यहाँ से बाई ट्रेन ढाका के लिए जाना है। इंडिया का सफर यहाँ से अमृतसर से सारा इंडिया क्रॉस करके हम ढाका पहुंचे। 7 दिन लगते थे पहुंचे। तो उसके बाद जब वहाँ पहुंचे तो हमें विलेज में ठहराया गया, तो हमें कमरे दिए गए। उसके बाद हमारे ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, वहाँ हम ट्रेनिंग करते थे। उनके अलग कमरे थे, जैसे पंजाब के अलग, दूसरे जम्मू के अलग। मेरा भी एक कमरा था जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाते। हम यहाँ पे बताते चले अपने नाज़रीन को कि तब ढाका जो है वो पाकिस्तान का ही मशरकी हिस्सा होता था। तो अभी तो जो अब हमारी जनरेशन आ रही है वो तो इतनी दूर जाके खेलने का सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ अवेल ही नहीं है हमें। तो वैसे भी अब अगर ढाका जाके कोई खेलता भी है या खेलेगा इन फ्यूचर, या जो खेल के आ चुके हैं पाकिस्तान से अलग के बाद, तो वो तो एक इंटरनेशनल के ज़िम्मे में आ जाता है। लेकिन जो मियां आज़म साहब जब अपनी एथलेटिक लाइफ के अंदर जब जाके खेलते थे वो नेशनल चैंपियनशिप होती थी। अब अगर कोई जाके खेलेगा तो वो इंटरनेशनल मुकाबला तक होगा। जी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। सर ये बताइएगा कि जब आप पहली दफा ओलंपियन आप जब बने तो आपके उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे कि आप एक पाकिस्तान के कलर के ऊपर आप जब ओलंपियन का आपको टैग लगा? पहले तो ये कहूँगा कि हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने एक टारगेट दिया था कि अगर मैं जैसे बैंटम वेट में 600 क्रॉस कर दूं मीटर प्रेस स्नैचर तो फिर चांस मिलता है ओलंपिक के। तो टारगेट नहीं दिया हुआ था, तो क्वालिफाई आप करोगे तब 600 से क्रॉस करें, तो वो मैंने तो थोड़ा सा गुजारिश करते चलें कि तब वेट लिफ्टिंग के जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे उसमें 3 इवेंट्स होते थे। आजकल तो हम लोग स्नैच और क्लीन एंड जर्क का जो टोटल होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं किसी भी हार या जीत के लिए। तो तब जो है वो 3 होते थे वहाँ पे। तब जो आज की पावर लिफ्टिंग आप हम लोग कह सकते हैं कि जैसे 3 इवेंट्स पे मुश्तमिल है, तब वेट लिफ्टिंग जो है वो 3 इवेंट्स पे होती थी। तब उसमें एक स्नैच आई थिंक होती थी, प्रेस होता था, स्नैच और क्लीन एंड जर्क होती थी। तो लेटर ऑन जब एडवांस्ड वेट लिफ्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंट्रोड्यूस करवाए गए तो उसमें फिर ये निकाल दिया गया था, प्रेस को निकाल दिया गया था, तो जस्ट ये स्नैच और क्लीन एंड जर्क की गेम है। जी काइंडली बताइएगा कि 1965 की जो पाक भारत जंग है उससे थोड़ा अर्सा पहले, गलबन कुछ दिन पहले, आपको रशिया की तरफ से, मॉस्को की तरफ से बाय नेम एक लेटर लिखा जाता है कि जी मियां आज़म साहब आए और यहाँ पे जो हमारा फेस्टिवल कोई उन्होंने करवाया था तो उसमें आप शिरकत करें। तो वो कैसा एक एजाज था कि पाकिस्तान का नाम या किस टीम का नाम की बजाय उन्होंने मियां आज़म साहब का नाम भी यूज किया। तो आप बताइएगा कैसे आपको क्या महसूस किया आपने और क्या? मेरे लिए तो इसी का मुकाम था तो भाई मैं मेरा नाम उन्होंने
लेटर भेजा कि आज जब नहीं गए तो 2 दफा ओलंपियन गेम में गए तो उनको साथ लेते। तो बच्ची बार ने कहा पहले तो मैं नहीं माना, मेरे को किसी और को ले गए, तो कहा नहीं 2 दफा तुम गए इसलिए तुम जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। 1965 में हम वहाँ नाच करते थे। गालिबन आप 1 साल पहले ही ओलंपिक गेम्स में शिरकत कर चुके थे 1964। सही, इसलिए उसी के ऑनर में भी आपको उन्होंने एक इन्विटेशन जी ऑनर की बात है जी हमारे लिए कि आजकल तो इस वक्त हमारे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मतलब ओलंपियन 2 मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर रहे हैं। तो आजकल तो एक मरतबा भी अच्छे स्टेटस वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी बहुत मतलब हार्डशिप्स फेस करना पड़ती है, तभी जाके वो ओलंपियन का टैग नहीं लग पाता। लेकिन जी हम ऑनर है, हम ओलंपियन के बाद बैठे हैं और वो भी वेट लिफ्टिंग गेम से मुंसलिक। तो जी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। रिटायरमेंट एक जो है मुश्किल मरहला होता है किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी गेम के अंदर स्पोर्ट के अंदर रिटायरमेंट एक बहुत मुश्किल मरहला कंसीडर किया जाता है एथलेटिक के लिए। आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आपके साथ आपका रिटायरमेंट का वक्त था तो आपने उस वक्त क्या फील किया कि आइदर मैं इसको कंटिन्यू करूं या मैं अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, मैं अब एज अ खिलाड़ी इसको नहीं सर्व कर सकता। क्या आपने उस वक्त क्या सोचा और क्या आपके जज्बात? मैंने खुद ये सोचा था कि अब मेरी जो मैंने बेटी थी वो खत्म है। उस वक्त 1973 में मैंने राता पक्का कर लिया था, अब मैंने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, कोई हो कर लूँ, गेम कर लूँ, कोचिंग कर लूँ, रेफरी पर कर लूँ। तो मती ने कहा ठीक है तो फिर रेफरी कर लूँ। तो फिर मैं रेफरी आऊँगा, इंटरनेशनल रेफरी बन गया। वेट लिफ्टिंग रेफरी बनने के बाद आपने कितने इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं उनको कितने मुकाबले को विटनेस किया है, वहाँ पे अपने सर्विसेज एज अ रेफरी जो है आपने की? एक तो मैं मिस्र ग्राउंड चौकट की है, इससे पहले ईरान में रेफरी में रेफरी किया, उसके बाद इंडिया गए थे 1982 में, वहाँ भी किया मैंने। आपने नाज़रीन को बताते चले कि मियां साहब जो हैं वो क्लास 2 कैटेगरी के IWF के रिकॉग्नाइज्ड रेफरी हैं, इनफैक्ट अभी भी हैं, और जो है वो अपने सर्विसेज जो है वो लोकल लेवल पे तो बहुत दे चुके हैं, इंटरनेशनल का उन्होंने चंद का जिक्र किया। तो सर आप पहले बताइएगा कि वेट लिफ्टिंग गेम आप बतौर कोच जब आपने सर्व किया तो कितने ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आपकी कोचिंग से जो मुस्तफीद हुए और उनके आगे स्टेटस जो है वो बने, और उसके बाद अगर आप एज अ टीम कहीं इंटरनेशनली लेके गए हैं तो वहाँ पे टीम की क्या मतलब प्रोग्रेस रही है, तो थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन। मैं 1989 में जब ये हो रही थी साउथ एशियन गेम इस्लामाबाद, वहाँ भी मैं मतलब कोचिंग का काम कर रहा था। उसके बाद वहाँ चेयरमैन रेफरी भी काम किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा इसी जगह पे इस्लामाबाद में कोच रहा। 1991 था, इसमें काफ़ी वेट लिफ्टर थे, जिसमें अब्दुल गफूर था, तेजी उम्मीद था, और उसके बाद गफूर, उसका भाई छोटा इस्तियाक, ये मेरे पास थे। दूसरा वाले से भी 2-3 थे। पाकिस्तान की एलीट जो क्लास है उनको फिर आपने एज अ कोच उनको ट्रेनिंग दी। जी नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे मियां आज़म साहब के पास, नहायत एक खुशगवार इंटरव्यू रहा, और मुझे तो बजाते खुद एक वेट लिफ्टिंग होने की वजह से बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज मौजूद हैं। आज़म साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ताकत की दुनिया में तहलका मचाने वाले खिलाड़ी की स्पोर्ट्स बायोग्राफी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ देखें फिटनेस से मुतल्लिक मालूमात।